اور بابرکت مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، اسی مناسبت سے چند گفتگو آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جس طرح جب ایک انسان کسی اہم کام کا پروگرام کرتا ہے تو اس کے تئیں بہت ساری چیزیں لاحق اور سابق کے طور پر منسلک ہوتی ہیں، اس سے انسان پوری پلاننگ کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ میں اپنے بات کا آغاز کروں گا۔ آج کل جو ہمارے سماج میں جو رائج ہے اور ہم دیکھتے ہیں، خصوصاً شادی بیاہ کو لے کے، شادی کا ایک وقت متعین ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے ہم نہ جانے کتنی شاپنگ، نہ جانے کتنی تیاری اور نہ جانے کتنا بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یہ مسلم ہے، ہر کوئی مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔ اور جب شادی کا دن آ جاتا ہے تو اس وقت بھی ہم بڑے اہتمام کے ساتھ جو بھی حضرات بطور مہمان، بطور سمدھی یا جس بھی شکل میں ہمارے پاس آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اہم اور بابرکت مہینہ بطور مہمان ہمارے پاس آنے والا ہے، تو ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ اس کا ویلکم کریں، اس کا استقبال کریں۔ تو ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اور آنے کے بعد؟ میں نے کم و بیش آنے سے پہلے کیا کریں تقریباً 10 اور آنے کے بعد کم و بیش میں نے 10 نوٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں، میں نے مختصراً جو میں نے محسوس کیا کہ یہ ہونا چاہیے اور میرے ناقص علم کے مطابق میں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ قبل اس کے کی وہ 10 نکات جو رمضان سے پہلے کرنا چاہیے اور وہ 10 نکات جو رمضان کے بعد کرنی چاہیے آپ کے سامنے بیان کروں۔ اس سے پہلے سمجھ لیں کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے واقعی اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ میں تفصیل میں گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ اکثر سنتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے صاحب کہ یہ پلر آف اسلام میں داخل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نا اسلام کی بنیاد۔ جس طرح یہ پورا اسٹرکچر آپ کے سامنے، یہ پوری بلڈنگ، یہ مسجد آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، ایک پلر میں اگر کچھ تذبذب اور کمزوری آ جائے تو کہیں نہ کہیں بلڈنگ کی کمزوری دکھائی دیتی ہے۔ ایسے ہی یہ پلرز آف اسلام ہے، جو روزہ ہے، جو صوم ہے، جو رمضان آنے والا جس کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ پلرز آف اسلام میں داخل ہے۔ اگر اس کے اندر ہماری کمزوری ہوتی ہے گویا کہ ہمارے اسلام میں، ہماری مسلمانیت میں، ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس پلر میں کمزوری آ جائے تو اس کی اہمیت کے لیے ہی کافی ہے۔ دوسری اہمیت اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اللہ کے نبی کی وہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ روزہ ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی نیکیاں بندہ کرتا ہے اس کی نیکیوں کو اللہ نے متعین کر دیا ہے، 1 سے 10، 10 سے 70، 70 سے 700 گنا تک۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ لیکن یہ جو روزہ ہے اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ جو ہوتا ہے وہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی روزے کا بدلہ کتنا ملے گا صاحب کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ روزے کی اور خصوصیت کے ساتھ رمضان کے اندر جو ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں اس کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اسی طرح اس کی اہمیت کو دو چند کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ایک روزہ، علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، جس نے ایک روزہ اگر جان بوجھ کر اگر وہ چھوڑتا ہے، پوری زندگی اگر اس کا قضا کرے تو اس کا پورا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے جان بوجھ کر گفتگو ہو رہی ہے، اور اگر انسان کسی عذر کی بنیاد پہ کرتا ہے تو اس کی تفصیل انشاءاللہ کسی اور خطبے میں آئے گی۔ بتانا مقصود ہے اس کی اہمیت کہ ایک اگر آپ روزہ جان بوجھ کر چھوڑتے ہو تو اس کی بھرپائی پوری زندگی تک انسان کرتا جائے تو وہ مکمل نہیں کر سکتا۔ اور اس کی فضیلت کے تعلق سے ایک بات اور کہہ کے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں، جو اصل موضوع اس پر آنے کی کوشش کروں۔ اللہ کے نبی کی حدیث جو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، ایک نفل روزے کی فضیلت یہ ہے کہ ایک روزہ اگر کوئی انسان رکھ لے تو 70,000 سال کی مسافت سے اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک نفل روزے کی بات ہو رہی ہے، فرض اس کا انسان شمار نہیں کر سکتا، اس کا سوچ نہیں سکتا کہ فرض، کیونکہ فرض کا ویسے ہی اس کا جو ثواب ہوتا ہے بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ فرض کا معاملہ الگ ہوتا ہے، سنت کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ یہ نفل روزے کی بات ہو رہی ہے، 70,000 سال کی مسافت سے آپ کے چہرے کو جہنم سے بچا لیا جاتا ہے، دور کر دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ کون سے اعمال جو اس
ماہ مبارک کے اندر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے پہلے کیا کرنے کی ضرورت ہے، جس کو علماء استقبال رمضان کے نام سے جانتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ویلکم رمضان، کہ ہم رمضان کا ویلکم کیسے کریں، رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ تو رمضان کا استقبال یا کسی انسان کا استقبال ہم جو کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ایکچوئل میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی مہمان اگر آتا ہے تو اس سے پہلے ہم تیاری کرتے ہیں، اور جب وہ آ جاتا ہے تب بھی اس کا ہم بھرپور نوازش کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی کچھ چیزیں رمضان سے پہلے کرنی ہے جو ایام چل رہے ہیں، اور کچھ چیزیں جو رمضان آ جائے گا وہ کرنا ہوگا، میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، میں نے اس کو اشارہ کیا تھا پہلے بھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اعدوا حلال شعبان لرمضان، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس گنتی کو گنو، یہ رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اس کو شمار کرو۔ ابھی اکثر لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ آج کون سی تاریخ ہے تو اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا عربی تاریخ کون سی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی ہوگا، لیکن اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ آج 24ویں تاریخ ہے، 24 شعبان۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو کم و بیش 5 سے 6 دن اور بچا ہوا ہے کہ انشاءاللہ العظیم ہم رمضان کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اگر 29 کا چاند ہوا شعبان کا تو انشاءاللہ 19 تاریخ کو جو انگلش کے حساب سے پہلا روزہ ہوگا، اور اگر 30 کی گنتی مکمل ہوئی تو 20 تاریخ کو انشاءاللہ 2026 کا یہ رمضان مبارک انشاءاللہ العظیم آئے گا۔ کبھی امید یہی ہے جس طرح کیلنڈر کے حساب سے لکھا ہوا ہے، اکثر لوگوں نے جو لکھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ العظیم 19 کو اپنا پہلا روزہ ہوگا، 18 ہی سے ہم تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ دوسری چیز جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، ہم ایک طریقے سے خوش ہوتے ہیں، مہمان کوئی آتا ہے، کوئی ہمارا اچھا پسندیدہ مہمان ہوتا ہے تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایسے خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی خود خوشی کا اظہار کرتے تھے، صحابہ کرام خود خوشی کا اظہار کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں بھی دیتے تھے۔ وہ کیسے؟ آتاکم شہر رمضان شہر مبارک، وہ کہتے تھے کہ تمہارے بیچ رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، یہ شہر مبارک ہے، مبارک مہینہ ہے۔ تو اپنے اندر ایک الگ طریقے کی خوشی ہونی چاہیے، خوشی کا اظہار ہونا چاہیے اپنے اندر کہ رمضان المبارک جیسا ایک عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اندر روزہ رکھیں گے، قیام اللیل آئے گا، اب کیا ہوگا، اب تو بہت پریشانیاں آئیں گی، اب کہاں سے پیسہ آئے گا۔ نہیں، اللہ انتظام کرنے والا ہے، اللہ انتظام کرنے والا ہے۔ خوشی کا اظہار ہو کہ ایک بہت بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ اسی طرح تیسرا کام جو ہمیں رمضان سے پہلے کرنے کی ضرورت ہے کہ دل کی صفائی، دل کی صفائی۔ عبداللہ ابن مسعود جو ابن رجب کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کسی کے اندر یہ جرات نہیں ہوتی تھی کہ رمضان مبارک آ جائے اور اس کے باوجود ہمارے دل کے اندر کسی کے تئیں کوئی کینہ موجود ہو، کسی کے دل کے اندر کسی کے تئیں حسد اور جلن موجود ہو۔ اپنے اندر سے حرج کو ختم کریں، اپنے اندر سے جلن کو ختم کریں، اپنے اندر سے کینے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے ہماری نیکیوں کی راہ میں، اور خصوصاً یہ جو رمضان کا مہینہ جو مغفرت کا مہینہ ہے اس میں خصوصیت کے ساتھ رکاوٹ بنتی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ 2 انسان کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے، ہر جمعرات ہر 2 شنبہ کو اللہ معاف کرتا ہے، سب کو معاف کرتا ہے سوائے 2 لوگوں کے۔ اس میں سے ایک بندہ کون ہوتا ہے؟ جس کے دل کے اندر اگر کسی بھائی کے تئیں کینہ اور نفرت ہوتا ہے، بھائی بھائی میں درار جو ہوتا ہے نا، یہ جو ہمارے ساس اور بہو کا جو جھگڑا ہوتا ہے نا، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ملاپ کرنے کی ضرورت ہے، ایک طرفہ اور اچھے انداز میں رہنے کی ضرورت ہے، مل کر رہنے کی ضرورت ہے، دل کے اندر سے حرج کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر دل کے اندر حرج رہے گا تو ہماری معافی نہیں ہوگی، دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو چوتھا کام کرنا ہے، تیزی کے ساتھ میں بیان کروں گا کیونکہ باتیں پھر رہ جاتی ہے۔ چوتھا کام کرنا ہے جو رمضان سے پہلے، وہ توبہ استغفار کرنا ہے۔ جی ہاں، توبہ استغفار، اپنے گناہوں کی معافی۔ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو گناہوں کی وجہ سے نا اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المومن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑتا ہے۔ فإن تاب وآمن صقل قلبه وإن زاد حتى يعلو قلبه فذلك الرجل الذي اشار الله عز وجل في كلام المجيد كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ پوری روایت آپ کے سامنے میں نے پڑھی، اللہ کے نبی کہتے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ دھبا پڑتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو سیاہ دھبا ختم ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے تو سیاہ دھبا بڑھتا چلے جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے تو وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اس آیت کی تلاوت کی کہ اللہ نے قرآن میں کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ اللہ رب العالمین گناہوں کی وجہ سے جو دل ہوتا ہے نا اس پر مہر لگا دیتا ہے، زنگ لگا دیتا ہے، پھر انسان کو نیکیوں کی توفیق نہیں ہوتی۔ انسان سوچتا ہے نا کہ اللہ توفیق دے گا تو ہو جائے گا، کہاں سے توفیق ہوگی؟ آپ گناہوں کے غرق ہو، معصیت میں ڈوبے ہوئے ہو، اللہ توفیق کہاں سے دے گا تم کو؟
तौफीक उस वक्त मिलती है ना जब एक इंसान तौबा कर ले, सच्चे दिल से अपना ले और तमाम गुनाहों को छोड़ दे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उसको नेकी की तौफीक देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में क्या कहा? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी कौम को उस वक्त तक नहीं बदलता है जब तक खुद अपने आप को बदलने की कोशिश न करे। अल्लामा इकबाल ने शायद कहा था कि रब ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत को बदलने का। अगर खुद इंसान को अपनी हालत को बदलने का ख्याल न हो, इंसान खुद अपने आप को चेंज करने की कोशिश न करे, तो अल्लाह उसको नहीं बदलता है। खुद तड़प होनी चाहिए, खुद अपने अंदर वो जज्बा पैदा करने चाहिए नेकियों की, तो अल्लाह और नेकियों का रास्ता हमवार करता है। वरना नुअल्ली मा तवल्ला, जो इंसान अगर बुराइयों के रास्ते पर गामजन होता है ना, अल्लाह उसी तरफ उसको और भी मोड़ देता है, उसी तरफ वो चले जाता है। तो अगर भलाई के रास्ते पर गामजन हो गए तो अल्लाह भलाई के रास्ते की आपके लिए आसान करेगा, और गुनाह के रास्ते पर अगर जाओगे तो अल्लाह और भी उस रास्ते को आपके लिए आसान कर देगा। तो खुद अपने आप को बदलने की कोशिश करो, फिर अल्लाह तुम्हारी हालत को बदलेगा। तो बात ये चल रही थी कि एक इंसान खुद अपने दिल पर जो सियाह धब्बा लगा हुआ है गुनाहों की वजह से, उसको साफ करने की जरूरत है, उसको खत्म करने की जरूरत है। पांचवी चीज जो करने की जरूरत है कि रमजान को पाने की दुआ करनी चाहिए। साहबे किराम के ताल्लुक से बड़ी मशहूर बात है कि 6 महीना कबल, कितना, अभी तो 6 दिन भी नहीं बचा हुआ है, 6 महीना कबल ही साहबे किराम ये दुआ करते थे कि अल्लाह हमको रमजान मुबारक का महीना नसीब फरमा। ये 6 दिन बचा हुआ है। हम और आप सुनते रहते हैं आज इनका इंतकाल हो गया, आज उनका इंतकाल हो गया। इस ताल्लुक से तो बड़ी मशहूर रिवायत है ना, हम लोग आप जानते हैं, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दो आदमी जो एक साहब ने ख्वाब देखा था, पूरी तफसील में जाना नहीं चाहता, बताना मकसूद ये है कि एक साहब जो उस हिसाब से उतने पाबंद नहीं थे नमाज के, उतने पाबंद नहीं थे इबादत के, जो बंदा एक पहले इंतकाल हुआ था वो बंदा इंतहाई ज्यादा इबादत का पाबंद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात सबसे टॉप पर वो था। शहादत की मौत भी होती है, लेकिन 1 साल बाद जो इंसान वफात पाता है वो उस शहीद से भी जो शहादत का दर्जा पाया हुआ है, ये इंसान जो सिर्फ और सिर्फ रमजान का महीना पा गया, उसके अंदर जो उसने इबादतें की, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस इबादत की वजह से अल्लाह उसकी शहादत के भी दर्जे से बड़ा दर्जा उसको मिला है। बुनियाद क्या थी? रमजान का महीना पाया हुआ है। तो रमजान के महीने को पाने की दुआ करनी चाहिए। बहुत अहम महीना है, बहुत बड़ा महीना है, शहादत के दर्जे से भी आप ऊंचा दर्जा पा सकते हो अगर रमजान का महीना आपको मिल जाए। और जाहिर सी बात है जिंदगी का भरोसा नहीं है। इसी तरह छठी चीज जो हमें करने की जरूरत है, अपनी नीयत को खालिस करने की जरूरत है। नीयत को खालिस में 2-4 चीजें मुराद होती है। सबसे पहली जो चीज होती है नीयत को खालिस करने से मुराद कि इंसान अभी से नीयत करे कि इंशाअल्लाह पूरा रोजा रखूंगा, नीयत करे कि इंशाअल्लाह इमाम के साथ, जमात के साथ इंशाअल्लाह जरूर मैं तरावीह की नमाज अदा करूंगा, इंशाअल्लाह 5 वक्ता नमाजी बनूंगा, इंशाअल्लाह मेरी एक भी नमाज नहीं छूटेगी। ये नीयत करो, दिल को साफ करो। दूसरी नीयत में यह दाखिल होता है कि एक इंसान जब ये इबादतें कर रहा है, खुद भी कर रहा है, कुरान भी पढ़ रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, रोजा भी रख रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो साथ साथ हमारी ये भी नीयत होनी चाहिए कि ये दिखावा नहीं होगा, ये खालिस अल्लाह के लिए होगा, ये खालिस अल्लाह के लिए होगा, किसी के कहने पर नहीं होगा। मुझे अल्लाह ने हिदायत दिया है, मुझे अल्लाह ने चुना है, मैंने अल्लाह के लिए नियत साफ किया है। किसी मौलवी के, किसी आदमी के, किसी शख्सियत के, किसी भाई के, किसी बहन के, किसी बाप के, किसी बेटे के कहने की वजह से नहीं कर रहा हूं। मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया, नबी ने हुक्म दिया, इसलिए मैं अपनी नीयत को साफ कर रहा हूं। ठीक है, हो सकता है कि आपको 10 लोग आके कहें, लेकिन आप ये सोचो कि मैं 10 लोगों की वजह से नहीं, बल्कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं। अल्लाह का हुक्म है, नबी का हुक्म है, हमारे नबी का फरमान है, नबी ने हदीस के जरिए बताया, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया, उस वजह से मैं अंजाम दे रहा हूं। तो नीयत को खालिस करना, दिखावा ना होना। फिर नीयत के अंदर एक चौथी चीज जो आती है वो ये है कि इंसान तकब्बुर से बचे, तकब्बुर ना करे कि मैं तो हमेशा से पढ़ते आया हूं, हमेशा पढ़ता हूं, मुझसे बड़ा कौन है, मैं तो सब कुछ करता, सदका तो खैरात भी करता हूँ, जहां जरूरत पड़ती है नेकियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की कोशिश करता हूँ। इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाता है, तकब्बुर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह 7वीं चीज जो है रमजान से पहले करने की जरूरत है, रमजान के मसाइल को सीखना। जी हाँ, रमजान के मसाइल को, किन चीजों से रोजा टूटता है, किन चीजों से रोजा नहीं टूटता है, किन लोगों के लिए रुखसत है, किन लोगों के लिए रुखसत नहीं है, सफर करेंगे तो क्या होगा, हायजा औरत के लिए क्या होगा, और इसी तरह दीगर जो लोग होते हैं जो बीमार होते हैं उनके लिए क्या होगा। तो ये तमाम मसाइल को खुद भी सीखने की जरूरत है। आप सोचें, आजकल शायद यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं किसी के हाथ में ऐसा कोई फर्द ना हो कि 10,000 की मोबाइल ना हो। 10,000, 20,000, 50,000, 25,000, लाख, 2 लाख की मोबाइल इंसान के हाथों में होती है, जो इंसान जिस कंडीशन में होता है अपने एतबार से।
क्या उनके पास 100 रुपए की, 50 रुपए की, आजकल तो फ्री में अवेलेबल है साहब, फ्री में लोग तकसीम करते हैं रमजान के ऊपर। कोई किताब से आपके पास है, सिर्फ इस नीयत से लिया हो कि रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, लाओ कम से कम रमजान के चंद मोटे मोटे मसाइल को मैं सीख लूं। किसी के पास है? शायद 2-4 लोगों के पास हो, शायद 2-4 लोगों ने एहतमाम किया हो। तो एहतमाम करने की जरूरत है कि मैं एक छोटी सी किताब जरूर रमजान के ताल्लुक से जानने की कोशिश करूंगा जो हमारे ऊपर अल्लाह ने वाजिब किया। जिस जुबान में आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते ना साहब, आइडियो भी मौजूद है, आप आइडियो सुनो। आजकल तो एआई का जमाना, आपको कुछ नहीं करना, कोई भी तस्वीर आप एआई को भेज दो, फोटो खींच के वो तस्वीर आप भेजो, बस उसमें इतना लिख दो, इतना इतना सिर्फ बोल दो अपनी जुबान से कि बस मुझे इसका उर्दू में बता दीजिए, हिंदी में बता दीजिए, कोंकणी में बता दीजिए। वो आपको उस जुबान में आपको बताएगा उसमें क्या लिखा हुआ, आप सिर्फ सुनो, बस कुछ नहीं करना है। आपको सवाब भी मिलेगा, मालूमात में इजाफा भी होगा। तो बताना मकसूद ये है कि इन अय्याम के अंदर एक अहम काम करने की जरूरत है, वो ये है कि मसाइल को सीखना और मसाइल को जानना। इस ताल्लुक से जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पाक पादा है, अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौली वल अमल, अल इल्मु क़ब्ल अल क़ौली वल अमल, कि इल्म को सीखना कुछ कहने से पहले और कुछ करने से पहले। तो रमजान एक अजीम शान महीना है, उसके अंदर बहुत सारे अमाल हम करने वाले हैं। खुसूसियत के साथ जो तरावी का मसला बहुत आता है, 20 रकात 12 रकात क्या है, सीखो साहब, देखो, सर्च करो कौन सी हदीस सही है, कौन सी गलत है। आप खुद भी देखो, खुद भी सर्च करने की जरूरत है। एक छोटी सी चीज अगर हमको लेनी होती है, 10 बार चेक करते हैं, 10 दुकान पे जाते हैं। किसी डॉक्टर के पास अगर खांसी आ गई, हम अगर चेकअप कराने के लिए जाते हैं तो पहले मालूम करते हैं कि डॉक्टर कैसा है, वो डॉक्टर कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि झोला छाप है, कहीं ऐसा तो नहीं उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तमाम चीजों को देखने के बाद तब अच्छे डॉक्टर को सिलेक्ट करने के बाद अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। ये दुनियावी मामलात है, ये तो अल्लाह का मामला है। दीन के मामले में जब उस वक्त जबकि दीन के नाम पर न जाने कितने मौलवी मुल्ला दुनिया में आ गए, उस वक्त मालूम करने की जरूरत है कि जो बात मैं करने जा रहा हूं, जो अमल में अल्लाह के लिए करने जा रहा हूं, वो वाकई कुरान और हदीस में है कि नहीं है। लोग समझते हैं ना, नमाज चलो, नमाज चलो, नमाज भाई, नमाज पढ़ना है, कैसे पढ़ना है आपको? सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, अल्लाह के नबी करे कि नमाज वैसे पढ़ना है जैसे तुमने मुझको पढ़ते हुए देखा है। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? हर जुम्मे में पढ़ा जाता है, आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं आमिलतुन नासिबा, अमल करके थक जाते हैं, अमल करके उनके पेशानियों पर पानी आता है। अल्लाह ने कहा तस्ला नारन हामिया, आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया। अल्लाह फरमाता है जो अमल करके थके हुए होते हैं, जो बहुत सारी इबादतें करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को तस्ला नारन हामिया, खौलते हुए आग के अंदर डाला जाएगा। ये कौन कह रहा है? तस्ला नारन हामिया, उस गर्म आग में डाला जाएगा। किसको डाला जाएगा? ये हम और आपको, जो हम इबादतें करते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं। क्यों डाला जाएगा साहब? नमाज पढ़ने वाले को डाला जाएगा, रोजा पढ़ने वाले को डाला जाएगा। ताज्जुब होता है ना हमको कि क्यों डाला जाएगा ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को जो वजह बयान की गई वो यही बयान की गई है कि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं करते। तो अमल कर लेना काफी नहीं है, अमल सुन्नत के मुताबिक होना काफी है। ये अमल करने की जरूरत है कि कुरान और हदीस में है कि नहीं जो हम अमल करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि पढ़ रहे हैं चल रहा है, एक एक चीज हम चेक करके जाते हैं साहब, एक एक चीज चेक करके हम लेते हैं। तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारी और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा वरना बात यहीं पर रह जाएगी। इसी तरह आठवीं चीज जो रमजान से पहले हमें करने की जरूरत है वो ये है कि नेकियों की प्लानिंग करनी है। नेकियों की प्लानिंग करनी है। जो एक बिजनेसमैन होता है और पहले से तैयार होता है, अभी देखिए रमजान का महीना आ रहा है तो रमजान के ताल्लुक से क्या क्या चीज लगेगा, क्या क्या चीज नहीं लगेगा, कपड़ों की खरीदारी या तो जो भी चीजें होती है, वो तमाम चीजें जो एक ताजिर होता है पहले से वो तैयार होता है। उससे पहले ही कि जब मौसम आएगा तिजारत का, जो मेरा सीजन आएगा जिसके अंदर मेरा बिजनेस ग्रो करता है, मेरा बिजनेस उरूज पर जाता है, तो पहले से वो तैयार हो जाता है। तो ऐसे नेकियों की प्लानिंग करें, नेकियों की प्लानिंग करें। खुसूसन माँ बहनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि उनका अक्सर जो औकात जाता है वो कहां पे जाता है? किचन में जाता है, खाना बन। ये भी सवाब का काम है, ऐसा नहीं कि सवाब का काम नहीं है, सवाब का काम ये भी है। ये भी है कि आप रोजेदार के लिए इफ्तार तैयार कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। भूख प्यास भी बर्दाश्त करते हो, वो चूल्हे के सामने उस गर्मी को भी बर्दाश्त करते हो, मेहनत करते हो, सब कुछ करना होता है, बच्चों को भी देखना होता है। उसके साथ साथ उसकी तंजीम करो। तंजीम क्या हो सकती है? आजकल तो बड़ी आसानियां हो गई हैं। वो तमाम चीजें जो रमजान के अंदर लगने वाली है, जो रमजान के अंदर लगने वाला, उसकी पहले से तैयारी आप कर लें, रमजान से पहले कर लें। रमजान की जो शॉपिंग होती है मर्द हजरात की भी जिम्मेदारी है। ये करते ही करते हैं लोग, कहते हैं कि रमजान की क्या शॉपिंग, ठीक है ये कहने की बात है, लेकिन हर कोई करता है। सच्चाई है कि हर कोई करता है। आप देख लें, ये तो यहां पे शायद हो ना हो, लेकिन आप जब जाएंगे मुंबई के इलाके में, आप किसी भी गली में चले जाए, मगरिब के बाद पूरा अंबार होता है औरतों का, मर्दों का एक खुशूम होता है, जंब गफीर होता है लोगों का, सिर्फ शॉपिंग कर रहे होते हैं। हमारी और आपकी जिम्मेदारी की रमजान से पहले निपट ले।
रमजान से पहले पूरा, वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरा गल्ला मौजूद होता है पूरे महीने का, तो रमजान में क्यों नहीं, रमजान में ही पूरा भर लें। रमजान से पहले जो आपको जरूरत पेश आने वाली आप पहले इंतजाम कर लें, ताकि वक्त का आप तंजीम करें, वक्त को आप शेड्यूल दें। ये ट्रेनिंग कोर्स है, ये तरबिया कोर्स है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको दिया है। अगर कोई इंसान नमाजी नहीं है ना, तो वो इंसान नमाजी भी इसमें बन सकता है। इंसान इस तरबिया कोर्स के अंदर दाखिल हो गए। बाकायदा किसी साइंसदान ने इजाद किया है कि अगर कोई इंसान 21 दिन तक कोई अमल रेगुलरली करता है, 21 दिन तक अगर कोई इंसान रेगुलर कोई काम करता है तो उसका आदी बन जाता है। किसी इंसान को कोई काम छोड़ना है, 21 दिन छोड़ दे, इंशाल्लाह उससे छोड़ जाएगा। बहरहाल ये आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन बताना मकसूद ये है कि रमजान तो 1 महीना पूरा है, पूरी ट्रेनिंग है। इसके अंदर भी अगर कोई नमाजी ना बन पाए तो उससे बड़ा महरूम शख्स कौन होगा। ट्रेनिंग कर लो। ये तो आसान होता है कि सब लोग पढ़ रहे होते हैं, किसी का कोई गम नहीं होता, किसी का कोई खौफ नहीं होता कि कोई कहेगा मेरे कहने से, अगर रमजान का सब कोई पढ़ता है। ये ट्रेनिंग करने के बाद में भी आप उसमें लगे रहें। इसी तरह मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा कि जो 10वीं जिम्मेदारी होती है कि वो हुकूक का ख्याल करें अभी से। जी हाँ, हुकूक में बहुत सारे हुकूक होते हैं, माँ बाप के हुकूक, बीवी बच्चे के हुकूक और दीगर लोगों के हुकूक। जो तमाम हुकूक, उन हुकूक में सबसे अहम हुकूक ये होता है कि इंसान अगर किसी से कर्ज लिया उसकी अदायगी कर दे, उसकी अदायगी कर दे। किसी को आप मारा है, किसी को आपने मारा है, गाली दिया है, या किसी से आपका कुछ भी मामला है, तो आप जाके माफी तलाफी कर ले। और उसमें भी अहम जिम्मेदारी होती है, जो लोग ये समझते हैं, जो लोग बहनों का माल और जायदाद खा के बैठे हुए हैं, जब 1 रुपये का कोई मामला आ जाएगा लोग सवाल करते हैं कि ये इलेक्शन जब आता है तो उसमें जो पैसा मिलता है 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, इसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में तुमको सवाल याद आता है, इसको सवाल याद आता है। और जब बहन का, भाई का, बेटे का जायदाद खा के बैठते हैं, उस वक्त हमको याद नहीं आता है। अक्सर लोग खा के बैठे हुए होते हैं, अक्सर लोग लेके बैठे हुए होते हैं, वो समझते नहीं हमने माफ करवा लिया है, करोड़ों की प्रॉपर्टी माफ करवा लिया है। वही बहन जब आपके घर पे आती है, आप 1000 रुपया दो ना, उसकी अगर शादी हो गई 1000 रुपया तो चुपके से अपने पर्स में रखती है कि कहीं मेरा शोहर देख न ले, वरना मेरा शोहर ले लेगा, चुपके से रखती है। क्या वो बहन जो प्रॉपर्टी छोड़ रही है वो ऐसे ही माफ कर देगी? साहब ये जबरदस्ती है, जबरदस्ती का सौदा। आप झूठे हो, वो माफ नहीं हो रहा है, जबरदस्ती आप उसको मजबूर करके माफ करवा रहे हो। क्यों? वो बहन भी जानती है कि अगर मैंने माफ नहीं किया तो फिर मैं अपने भाई के पास आ नहीं पाऊंगी। ये हालात हमने क्रिएट करके रखा हुआ है। साहब दे दो, लाख रुपए का जो प्रॉपर्टी, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख की प्रॉपर्टी मौजूद है, आप उसको दे के हवाले कर दो ना, उसके नाम पे करवा दो, उसके बाद देखता हूं कि आपके नाम पे करवाती है। वो नहीं हो सकता साहब। जरूरत इस वक्त की हम होश के नाखुन ले। रमजान से पहले जो बड़े बड़े अमाल करने जा रहे हैं ना, उससे पहले इस जायदाद का मामला क्लियर करो। जिसका भी जो भी है, जो भी आप किसी का प्रॉपर्टी हड़प करके रखे हुए हो, किसी की प्रॉपर्टी अपने नाम पे रखा कर रखे हुए हो, उसको अपने कब्जे में ले लो साहब, उसको दे दो, उसके हवाले कर दो, जिसका भी 1 इंच बराबर कर दो, या कम से कम वसीयत कर जाओ, वसीयत कर जाओ। मौत का कभी भरोसा नहीं है। एक हदीस अल्लाह के नबी की मुझे याद आ रही है यहाँ पे, अल्लाह के नबी की हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 1 दिन भी इंसान को नहीं जाना चाहिए कि अपने तकिए के नीचे वसीयत कर जाए। वसीयत कर जाए क्या मतलब? कब इंसान की जिंदगी चली जाए, जिंदगी का भरोसा नहीं है। वसीयत कर चले जाए, किसका प्रॉपर्टी क्या है, किसका क्या है, वो पूरा लिख कर आप चले जाए। जिसको आपको कुछ करना है, किसका कुछ बाकी है, तो आप लिख के चले जाओ, ताकि मरने के बाद आपके जो वरसा है वो देखें तो मालूम है कि हाँ मेरे अब्बा ने, मेरे वालिद ने, मेरे भाई ने और मेरे फला साहब ने ये लिख कर गए हुए हैं। ये मेरा टॉपिक नहीं बताना, मकसूद ये था कि आप हुकूक की अदायगी करो। इसी तरह चूंकि वक्त हो चुका है, 5 मिनट और है, 5 मिनट के अंदर कि रमजान के अंदर हमको क्या करना चाहिए, बस टू द पॉइंट आपके सामने जिक्र करूंगा। सबसे पहली चीज की एहतराम, ये शायर इस्लाम है। देखिए हर एक के कुछ ना कुछ पहचान होते हैं, हर एक के कोई ना कोई एक इलामतें होती हैं। ऐसे इस्लाम का एक पहचान है रोजा, नमाज, हज, ज़कात। ऐसे रमजान जो है ना, ये शायर इस्लाम में दाखिल है। शायर इस्लाम में कई चीजें होती है, सफा मरवा जो हमें पूरा याद दिलाता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइर अल्लाह, अल्लाह के शायर में से। ऐसे रमजान भी सबसे टॉप पर उलमा ने जिक्र किया है कि शायर इस्लाम में, इस्लाम की जो पहचान खुसूसियत के साथ है वो रमजान के महीने में रोजा रखना, ये टॉप पर जिक्र किया जाता है। तो इसका एहतराम जरूरी है। जिस तरह हमारे पास अगर हमारे घर के अंदर कोई दुनिया का बेहतर से बेहतर ओहदे पर फाइज शख्सियत हमारे घर पे चली आए तो कैसा हम फख्र महसूस करते हैं, ऐसे हमारे अंदर उसका एजाज़ और इकराम और एहतराम होना चाहिए। इसी तरह दूसरा, शुक्र होना चाहिए। शुक्र भी बजा लाएं। जी हाँ, शुक्र होना चाहिए। अगर हमको रमजान मिल गया तो उससे हम शुक्र अदा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे महरूम हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमको रमजान मुबारक का महीना हमें रमजान मुबारक का महीना अदा किया। ये कब करना है? रमजान के बाद। इसी तरह सवाब की उम्मीद के साथ रोजा रखना है।
दिखावे के लिए नहीं रखना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन साम रमजान ईमान व एहतिसाबा, ईमान के साथ और एहतिसाब के साथ जितने भी अगर रोजा रखा रमजान का, अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देता है जो गुजर गए। लेकिन कबीरा गुनाह माफ नहीं होता है, उसके लिए तौबा शर्त है। इसी तरह नमाज की पाबंदी, साहब नमाज की पाबंदी करनी है। तीसरी चीज जो अहम चीज होती, चौथी चीज जो अहम चीज होती है वो जुबान की हिफाजत। जुबान की हिफाजत, एक तो अभी से जुबान की हिफाजत उसे हमेशा करना चाहिए, रमजान के अंदर खुसूसियत के साथ। और जो लोग कहीं ना कहीं सेठ बने हुए हैं, जिनके यहाँ कुछ लोग काम करते हैं या यूं ही चौराहे पर बैठते हैं, चाय नोशी करते हैं, गप सड़ाका करते हैं, 4 आदमी के साथ उठना बैठना होता है, बहुत अच्छी बात है, करो, मालिक बनो, बॉस बनो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त हिफाजत की जरूरत है। अल्लाह के नबी की हदीस मल्लम यदअ क़ौल ज़ुर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तआमहु व शराबह। अल्लाह के नबी की हदीस, मुस्लिम शरीफ की रवायत कि कोई इंसान अगर झूठ बोलना, उस पर अमल करना, और कौल ज़ूर, और इसी तरह रफत का भी लफ्ज है, बाज दफा जिदाल का भी लफ्ज है कि एक इंसान गलत काम को करना, चीखो पुकार करना, झूठ बोलना, उस पर अमल करना नहीं छोड़ता है, तो ऐसे शख्स की कोई जरूरत नहीं कि वो भूख और प्यास को बर्दाश्त करे। यानी ऐसे शख्स का रोजा कोई फायदा नहीं है जो अपने वर्कर्स को गाली देता है, जो अपने भाई बहन को गाली देता है, या किसी और का बदजुबानी करता है, या इसी तरह झूठ बोलता है, झूठ से काम लेता है, महफिलें सजाता है, कहकहा लगा के हंसता है, चीखो पुकार करता है। ऐसे शख्स के रोजे की कोई जरूरत नहीं है, ये अल्लाह के नबी कह रहे हैं। इसी तरह कुरान की तिलावत हम नज़्म बनाए, ज़ब्त बनाए। कुरान की तिलावत हमें कब करनी है, कितना करनी है, कम से कम इतना तो हो सकता है आप हर नमाज के बाद रूटीन बना लो, हर नमाज के बाद या हर नमाज से पहले। खाना पीना तो खाना नहीं है, नमाज में तो आना ही है, नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप कम से कम हर नमाज के बाद 2 सफा पढ़ो, 2 सफा। इस हिसाब से अगर इंसान 2 सफा पढ़ता ना, सिर्फ 2 सफा, अगर नमाज से पहले 1 सफा पढ़ ले, नमाज के बाद 1 पेज पढ़ ले, ऐसे अगर इंसान पढ़ता है 5 नमाज में, वैसे इंशाल्लाह उसका 1 पारा हो जाएगा। रूटीन बनाओ, और रूटीन के साथ साथ चूंकि कुरान जो है ना ये हुदल लिन्नास है, लोगों की हिदायत के लिए, तो जिम्मेदारी क्या है उसको समझे भी, तो समझ कर पढ़ने का भी नज़्म ज़ब्त बनाए, उसकी तरतीब बनाए। और इंशाअल्लाह लज़ीज़ हमारी जो मस्जिद है, इंशाअल्लाह इस बार जो एहतमाम करने की कोशिश की जाएगी कि हर तरावीह के बाद 1 पारे का खुलासा इंशाअल्लाह 10 मिनट के अंदर शॉर्टली आपको पेश करने की कोशिश की जाएगी। तो इंशाअल्लाह जरूर हाजिर हो, जरूर सुने। इंशाअल्लाह तरावीह भी और मजीद उसके बाद 10 मिनट का वक्फा होगा, 10 मिनट के अंदर पूरे 1 पारे का खुलासा कि अल्लाह ने पूरे कुरान के अंदर क्या फरमाया है, 10-10 मिनट के अंदर 1-1 पारे का खुलासा आपको पेश किया जाएगा। तो कम से कम जरूर हाजिर हो। जो इंसान खुद से पढ़ सकता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते, टाइम नहीं मिलता है, तो 10 मिनट जरूर निकालें। इंशाअल्लाह तरावी के बाद आपके सामने 10 मिनट का खुलासा जरूर पेश किया जाएगा, 1 पारे का 10 मिनट में खुलासा, बिल इख्तिसार, टू द पॉइंट। इसी तरह जो हमें काम करने की जरूरत है इस रमजान के अंदर कि हम दुआ करें, दुआ का एहतमाम करें। अल्लाह के नबी की हदीस, 3 लोग हैं जिनका दुआ रद्द नहीं होता है, उसमें से एक है कि अस्साइम हत्ता युफ्तर, कि एक रोजेदार अगर जो दुआ करता है अल्लाह से तो उसकी दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता। तो रोजे की हालत में कसरत के साथ अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह आपको जरूर अता करेगा। इसी तरह सदका तो खैरात, अल्लाह के नबी की हदीस, जबकि अल्लाह के नबी के घर में 2-2 महीना चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाह के नबी के ताल्लुक से आता, बुखारी मुस्लिम की रवायत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कि काना अजवद बिल खैर मिन रिहिल मुरसला, जिस तरह तेज और धुंध हवाएं चलती है ना, उससे भी कहीं ज्यादा तेज अल्लाह के नबी कसरत के साथ सदका तो खैरात करते थे। जहां तक हो सके वैसे सदका तो खैरात 12 महीने में करने की जरूरत है, लेकिन खुसूसियत के साथ इस महीने के अंदर अल्लाह के नबी जितना हो सकता था उतना खर्च करते थे, तो अल्लाह के लिए खर्च करने की जरूरत है। इसी तरह नवाफिल का एहतमाम, एक तो हमें फर्ज नमाज की एहतमाम करना ही करना है, नवाफिल का एहतमाम, बार बार आपका वजू टूटता है ना, आप बार बार वजू करो, बार बार वजू करने के बाद तहज्जुद वजू पढ़ लो, 2 रकात नमाज पढ़ लो। नमाज के अंदर आया हुआ है मगरिब से पहले 2 रकात जो हम कहते हैं नफिल है उसको पढ़ो, इशा से पहले 2 रकात नफिल है उसको भी पढ़ो, असर से पहले 4 रकात नफिल है उसको पढ़ने का एहतमाम करो, और जो सुन्नत मुअक्कदा उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसी तरह इफ्तारी करने के साथ साथ दूसरों को इफ्तारी करवाएं। अल्लाह के नबी की हदीस, जो बंदा इफ्तारी करवाता है तो रोजेदार के बराबर सवाब मिलता है। आपके रोजे में कोई कमी नहीं होगी, उस बंदे के रोजे में कोई कमी नहीं होगी। अच्छा, ये जो इफ्तारी करवाना है ये गरीब, मालदार, अमीर, गरीब सब बराबर है। अल्लाह के नबी ने कोई तायुन नहीं किया। आप चाहे तो पूरी मस्जिद को रोज इफ्तारी करवाओ, चाहे तो किसी बंदे को सिलेक्ट करो उसको करवाओ, डेली उसके घर पे भेजो, जैसी भी आपकी हो सकती है आप जरूर भेजो। अपना भी सवाब मिल रहा है, उसका भी सवाब मिल रहा है, जो बंदा इफ्तारी कर रहा है उसको तो मिल ही रहा है, उसके सवाब में कोई कमी नहीं, आपके सवाब में कोई भी कमी नहीं, आपको 2 गुना मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपका और प्लस जो इफ्तार कर रहा है उसका भी सवाब आपको मिल रहा है। इसी तरह तरावीह का एहतमाम, अल्लाह के नबी की हदीस, मन कामा रमजान ईमान व एहतिसाबा गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबे। एक तो ये जिसने रोजा रखा, एक ये भी है कि जिसने क़याम किया,
ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ پورے رمضان کا جو تراویح جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو قیام اللیل، تہجد ایک ہی چیز ہے جو ہم رمضان کے بعد تراویح کا نام دیتے ہیں، اگر کوئی انسان اس کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ اس کے گناہ کو پورا معاف کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں جو امام کے ساتھ پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ تو اللہ رب العالمین اس کو پوری رات قیام کرنے کے برابر ثواب دیتا ہے۔ تو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری کام وہ ہے عمرہ۔ جس کو اللہ نے توفیق دیا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، اس کو ان ایام کے اندر کثرت کے ساتھ عمرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ اور حج کے ارادے سے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، انصاری صحابیہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو میرے ساتھ عمرہ کرنے، سب لوگ جا رہے تھے حج کرنے، چلو ہمارے ساتھ حج کرنے، سب لوگ جا رہے ہیں آپ بھی چلو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ حدیث ہے۔ تو وہ انصاری عورت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی، ہمارے گھر پہ 2 اونٹ ہے، ایک اونٹ جو تھا ہمارے شوہر لے کے چلے گئے، اور ایک اونٹ ہے جس پر میں دور سے پانی لاتی ہوں، اگر وہ پانی نہ لاؤں تو میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے، میں اگر وہ پانی نہ لاؤں تو ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلے گا، اس کی وجہ سے کھانا تیار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی، میں جا نہیں سکتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اچھا ایسی بات ہے، یاد رکھو جب رمضان کا مہینہ آ جائے فاعتمری، اللہ کے نبی نے کہا اس کو خصوصیت کے ساتھ کہ فاعتمری، جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو اس میں عمرہ کر، فإن عمرة فی رمضان تعدل حجہ، وفی روایت اخری تعدل حجۃ معی۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمرہ رمضان کے اندر اگر کوئی کرتا ہے تو وہ حج کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے اگر کوئی انسان رمضان کے اندر عمرہ کرتا ہے۔ تو جس کو اللہ رب العالمین نے نوازا ہے اس کو چاہیے کہ ضرور ان مہینوں کے اندر، خصوصاً رمضان کے مہینے میں وہ عمرہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بہرحال ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بہرحال ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأكبر، قوموا للصلاة۔